Good morning, students. Up to the last class, we have discussed the composition of the blood. Blood basically there are two components. One component is the blood plasma, and blood plasma consists liquid part of the blood matrix. You can say matrix part of the blood is the blood plasma. Second one, cells, corpuscles. The cellular part is the corpuscles. And in case of the blood plasma form 55% part, blood corpuscles form rest 45% part. Right? Blood plasma contain about 90 to 92% blood, water, and rest part is the some of the proteins, albumin, globulin, and fibrinogen. Fibrinogen protein we will discuss later on in next class while we discuss the blood clotting. Today we will discuss the blood corpuscles. So, blood corpuscles. In case of the blood corpuscles, there are three kind of the blood corpuscles are present over here. Number one, RBCs. Second one, WBCs. And third one are the platelets. RBCs. RBCs, we have discussed on last class that these are the most numerous and about 5 to 5.5 million per cubic millimeter. पर क्यूबिक मिलीमीटर एक क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में ये 5 to 5.5 millions. RBCs, they are red colored. Why they are red colored? They are red colored due to presence of hemoglobin. These are red colored due to presence of hemoglobin. Hemoglobin is a kind of the pigment. जैसे बच्चों हमारे यहाँ hemoglobin होता है, just like in plants, the leaves are green in color due to chlorophyll. तो जैसे क्लोरोफिल होता है वैसे हमारे यहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन दी ब्लड. चलिए बच्चों, ये हीमोग्लोबिन, दिस हीमोग्लोबिन कैरी oxygen. You have learned in the breathing chapter. Hemoglobin carry oxygen. It carry oxygen. So, what is the main function of RBCs? To carry oxygen. Oxygen transportation is the main function of RBCs. Over lifespan 120 years, 120 days. One another, what is the shape? That these RBCs are the biconcave. This one biconcave in shape. Now we are going to discuss WBCs. RBCs, one another point. RBCs are also known as erythrocytes. RBCs are also known as erythrocytes. Got it? Now we are going to discuss WBCs. WBCs, because these do not have any pigment, so they are colorless. When they are colorless, they are known as leukocytes. They are known as leukocytes. Colorless. WBCs, men, their lifespan depend upon their conditions. कैसी conditions हैं? Because their main function is the defense, protection, to provide protection against diseases, against germs. जो भी germs हमारी body में enter होंगे, who will fight it first? WBCs. So WBCs, इसको मैं हटा दूं यहाँ से. हटा दिया जाए और तो ये हम लोग ये आरबीसी को अपने
Now we are going to discuss WBCs in detail. WBCs, simple cells, they do not have any definite shape. They do not have any definite shape. So they are called as amoeboid in shape. जैसे अमीबा होता है ना बच्चों, पढ़ा तुम लोगों ने in lower classes. Amoeba, it do not having indefinite shape. कभी तो ये ऐसा हो जाता है, कभी ये ऐसा हो जाएगा, कभी ये किसी भी शेप में, इट कैन चेंज इट्स शेप, किसी भी शेप में हो सकता है, वॉट एवर दी शेप. सो द शेप ऑफ अमीबा इज नोन एज अमीबोइड शेप. तो अमीबोइड शेप इन आवर बॉडी विच सेल्स हैविंग अमीबोइड शेप, WBCs. याद रहेगा. चलिए अब बात आती है मेरे पास में. अब ये WBC जो है इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा. WBCs are basically two types. WBCs are basically two types. On the basis of their, ये सेल है और इनकी सेल है तो सेल में क्या होती है बच्चों, कुछ स्पेशल टाइप की ग्रेन्यूल्स मिलती है. और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम ग्रेन्यूल्स, the WBCs are basically of two types. Number one, granulocytes. Number one, granulocytes, and another one will be granulocytes. On the basis of presence of granules in their cytoplasm. Presence of granules in their cytoplasm, these are two types, granulocytes or granulocytes. Granulocytes again are of three types. बच्चों ये स्टेन, कौन से स्टेन, एक जो हमारा पर्टिकुलर स्टेन है, इस स्टेन से ये कलर्ड हो जाती है. हम लोग बच्चों डिफरेंट सेल्स को कैसे ऑब्जर्व करेंगे? हाउ कैन वी ऑब्जर्व डिफरेंट सेल्स? बिकॉज दीज आर कलर्ड, तो दिखेगी नहीं माइक्रोस्कोप में. तो हम लोग क्या करते हैं, इनको कलर देते हैं. वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेन्स सो दैट दे कैन अपीयर इन डिफरेंट कलर्स. जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए एक डिफरेंट कलर होगा, प्रोटीन को डाई करने के लिए डिफरेंट कलर होगा. तो अलग अलग जो मटेरियल्स हैं उनको अलग अलग मटेरियल, अलग अलग जो स्टेन्स होते हैं, दे विल डाई, दे विल कलर्ड. इसीलिए सेल्स के ऊपर जैसे हम लोग कलर डालेंगे तो इट अपीयर इन डिफरेंट कलर्स, तो अलग अलग कलर हमको नजर आते हैं. तो बच्चों यहाँ पर हम लोग जैसे ही कलर ले आएंगे तो वैसे ही हम इनको जैसे स्टेन डाला तो वी विल सी द ग्रेन्यूल्स. सो some of the cells in which granules are stained by acidic stain. किससे स्टेन होते हैं बच्चों? एसिडिक स्टेन से. तो एसिडिक डाई से ये स्टेन हो जाती है तो हम लोग कहते हैं इनको एसिडोफिल्स. एसिडोफिल्स also known as eosinophils. eosin से ये कलर्ड हो जाती है, that's why eosinophils. eosinophils ये एसिडिक डाई से कलर होती है. eosinophils विजिबिलिटी है, दिख रहा है बच्चों पूरा? चल एक बार चेक कर लूं, थोड़ा सा प्रोडोमेटिक है ये लो. तो eosinophils, they are stained with the acidic dye, acidophils. Second one, basophils, because these colored with the basic stain. These colored with the basic stain. अब बच्चों जो एसिडिक से भी कलर हो जाए ना हो जाए और बेसोफिल से भी बेसिक डाई से भी कलर हो जाए, जो इससे भी जैसे हो जाए, न्यूट्रल है, तो ऐसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रोफिल्स. These are known as neutrophils, right? Because these are neutral. Now their functions, सबसे ज्यादा which is the smallest WBCs? Neutrophils. Neutrophils are the smallest sized WBCs. और जो सबसे छोटी होती है तो क्या होती है? These are largest in number, smallest in size but largest in number. So
is having 60 to 65%. What is the percent of neutrophils? 60 to 65%. Acidophils या eosinophils 2 to 3%. 2 to 3%. सबसे कम अमाउंट में मिलने वाली 0.5 से लेकर के 1% तक. These are basophils. Basophils are the least abundant WBCs. Least abundant WBCs, basophils. अब बच्चों try to understand their functions. जब भी जैसे ही बच्चों बाहर से कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो हमारी बॉडी की सेल्स एक्टिव हो जाती है. दी सेल्स बिकम एक्टिव. वो जैसे ही एक्टिव होती है तो हमारी बॉडी एकदम से एक्टिव होगी. तो ये जो रेस्पॉन्स है, दिस रेस्पॉन्स, इस रेस्पॉन्स को शो करवाने का काम कौन होता, किसका होता है? बेसोफिल्स. बेसोफिल्स रिलीज नंबर 1 सेरोटोनिन. Serotonin is a kind of hormone also. You can say it is a chemical. और ये सेरोटोनिन जो होता है, it is also secreted by the our जो हमारी पीनियल ग्लैंड होती है वो भी इसको रिलीज करती है. कहते हैं ना हम लोग डायगोनल मोशन, रिदमिक साइकिल, शाम पड़ते नींद आने लग जाती है, तो ये सेरोटोनिन. सेकंड वन हिस्टामिन. बच्चों क्या होता है, हमारी बॉडी में जब भी जैसे ब्लड वेसल्स, जैसे हमारे चोट लगा या जैसे ही चोट लगी तो क्या होगा, बाहर से पैथोजेंस एंटर हो सकते हैं. और जो बाहर से पैथोजेंस एंटर हो सकते हैं तो ये हिस्टामिन वहां पर जाता है और जाकर के उस पर्टिकुलर पार्ट में हमें स्वेलिंग होने लग जाती है. Why swelling occur at the part of injury? Due to ये करता है हिस्टामिन वहां पर ब्लड वेसल से उनको छोड़ा गया. वासा डायलेटर. वासा डायलेटर. सेरोटोनिन वासा कॉन्स्ट्रिक्टर. हिस्टामिन वासा ब्लड वेसल से तो वासा डायलेटर. ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, चौड़ा कर देगा, ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर देगा, जिससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर पार्ट में स्वेलिंग आ जाएगी, ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. तभी तो जहां पर दर्द होता है तो क्या करते हैं, वी अप्लाई दी आइस पैक. आइस पैक, व्हाई वी अप्लाई दी आइस पैक? टू रिड्यूस द टेम्परेचर, ताकि पेन हमारा कम हो सके. तो ये हिस्टामिन, ये जो पेन करवाता है, तो ये हमारे पास है बेसोफिल्स. बात आती है न्यूट्रोफिल्स की. न्यूट्रोफिल्स लार्जेस्ट नंबर, अभी थोड़ी देर बाद बातचीत करता हूं इसके बारे में. एसिडोफिल्स से थोड़ी सी बातचीत कर लिया जाए. बच्चों, व्हेन यू आर सफर फ्रॉम दी एलर्जिक रिएक्शन, एकदम सर्दी में आ गए, ज्यादा सर्दी हो गई, या कोई ऐसी चीज खा लिया किसी ने, इंसेक्ट, हम पॉइजनस इंसेक्ट ने काट लिया, तो इन सब एलर्जिक रिएक्शंस, इन सब जगहों, प्लेसेस पर which cells become more active, more in number, acidophils, to neutralize these allergic. तो यहाँ पर ये एलर्जी में बहुत ज्यादा, यहाँ पर ये एलर्जिक रिएक्शन शो करती है. एलर्जिक रिएक्शन क्यों शो करेंगे बच्चों? एलर्जी इज नथिंग अ डिजीज, इट इज द इम्यून रेस्पॉन्स. इम्यून रेस्पॉन्स हमारी बॉडी का एक रेस्पॉन्स है, ताकि so that we can counter with the foreign material, ताकि हम लोग जो भी फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, जो भी फॉरेन सिचुएशंस आई हैं, उनको हम लोग अच्छे से हैंडल कर सकें. सो इओसिन्स आर इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन. और ये एलर्जी करवाने वाला कौन होता है बच्चों? हिस्टामिन. हिस्टामिन इस टाइम पर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, एसिडोफिल्स को बोलता है आप ज्यादा से ज्यादा वहां पर नंबर पे पहुंचो. गॉट इट? तो तभी तो हम लोग
जब भी जितनी भी एलर्जिक रिएक्शंस होती है, एलर्जिक मेडिसिन होती हैं, उन पे क्या लिखा होता है बच्चों, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। क्या लिखा होता है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, बिकॉज इट रिड्यूस दी एलर्जी, हमारी इम्यून पावर को वो रिड्यूस करता है। इम्यून पावर को रिड्यूस कर दिया, हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए अब रिएक्शन देगा ही नहीं, कुछ भी हो जाएगा रिएक्शन नहीं देगा, और जब रिएक्शन नहीं देगा तो एसिडोफिल्स को पता भी नहीं चलेगा। सो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, वो कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए न्यूट्रोफिल्स, अब ये न्यूट्रोफिल्स से पहले हम लोग यहाँ पर ये ग्रेनुलोसाइट से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं बच्चों। ग्रेनुलोसाइट्स, देयर इज नो ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। तो क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, मोनोसाइट्स, और सेकंड वन lymphocytes. Monocytes and second one are the monocytes and lymphocytes. So these are the lymphocytes. Now another concept arise over here. Monocytes number 6 to 8%. मोनोसाइट्स नंबर 6 to 8%, और जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं, these are present into 20 to 25%. So you are able to understand which are the most numerous neutrophils, which are the second most numerous WBCs, lymphocytes, least numerous basophils. अब बच्चों न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, these both are associated with the, क्या करती हैं ये पैथोजन, ये देखो सपोज दिस इज दी जर्म, ये जर्म यहाँ पर आया, बैक्टीरिया, वायरस, व्हाटएवर इट इज, ये डब्ल्यूबीसी यहाँ पर आती है, इसके पास जाती है और जाकर के अब इसके पास जाकर के ऐसे इट फॉर्म अ कप शेप स्ट्रक्चर लाइक दिस, इट फॉर्म कप शेप स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड एंगल्स इट, पूरा का पूरा निकल जाता है, एंगल्स कर जाते हैं, ये एंगल करते हैं, पूरा पूरा खा जाएगा। This process is known as phagocytosis. So neutrophils and monocytes both are associated with the phagocytosis. Phagocytosis engulfs the foreign material, engulfs the foreign material, जो बैक्टीरिया है, जर्म्स है, उन सबको ये खा जाता है। Neutrophils smallest in number, smallest in size, so these are known as micropolismen. Neutrophils are also known as micropolismen. Neutrophils are also known as micropolismen. Monocytes also known as macropolismen. Macropolismen. ठीक है, ये हो गया माइक्रो और ये हो गया मैक्रो। अब बात बच्चों, ये इतनी सारी बात, फंक्शन तो सबको समझ में आ गया। एसिडोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन, बेसोफिल्स सिक्रेशन ऑफ हिस्टामिन, serotonin. Neutrophils and monocytes, these are associated with the phagocytosis. बच्चों क्या होता है, मोनोसाइट्स का लाइफ साइकिल बहुत थोड़ा सा होता है। आफ्टर 2 to 5 days, 2 से 5 दिन बाद, these monocytes change into phagocytes, बहुत बड़ी साइज की रहती हैं और ये बड़े मटेरियल्स को खाने के लिए मॉडिफाई रहती है, तो इनको क्या कहते हैं, फेगोसाइट्स। और फेगोसाइट्स क्योंकि बड़ी साइज की रहती है तो इसको कहते हैं मैक्रोफेजेज। मोनोसाइट्स आफ्टर 2 to 5 days एंटर फ्रॉम द ब्लड इनटू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, में चली जाती है एंड मॉडिफाई इनटू मैक्रोफेजेज। किसमें कन्वर्ट होती है बच्चों, मैक्रोफेजेज। नाउ लिम्फोसाइट्स, बच्चों ये जो लिम्फोसाइट्स हैं इनका मैचुरेशन,
Maturation of lymphocytes. There are two places for maturation of lymphocytes. इन बाकी चीजों को हटा दो. There are two places. अभी बस इनके न्यूक्लियस के बारे में बताना है. एक मिनट में बताता हूं. There are two places of the maturation of lymphocytes. ये जितनी भी lymphocytes इन सबका फॉर्मेशन तो कहाँ होता है? बोन मेरो. कहाँ होता है बच्चों? बोन मेरो. But their maturation may take place in bone marrow itself, या तो बोन मेरो में ही इनका मैच्योरेशन हो जाएगा, और अगर बोन मेरो में नहीं होता तो कहाँ होगा? थाइमस ग्लैंड में. कहाँ होगा बच्चों? थाइमस ग्लैंड. या तो मैच्योरेशन का देयर आर टू प्लेसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स, थाइमस ग्लैंड और बोन मेरो. अगर थाइमस ग्लैंड में मैच्योरेशन होता है तो हम लोग कहेंगे टी लिम्फोसाइट्स. These are known as T lymphocytes. The lymphocytes of which maturation take place over in the thymus gland. अगर मैच्योरेशन बोन मेरो में होता है कहेंगे B lymphocytes. So lymphocytes are of two types, B lymphocytes and T lymphocytes. बात समझ में आ गई? B lymphocytes क्या होती है, T lymphocytes क्या होती है? चलिए एक लास्ट पॉइंट जो मुझे यहाँ पर डिस्कस करना वो समझने की कोशिश करें. बच्चों इओसिनोफिल्स न्यूक्लियस, शेप ऑफ न्यूक्लियस पर आना और बात को समझने की कोशिश करना. शेप ऑफ न्यूक्लियस, यू कैन टेक देयर स्क्रीनशॉट ले सकते हो. बच्चों न्यूक्लियस पे देखते हैं. द न्यूक्लियस ऑफ eosinophils is bilobe. एक लोब ऐसे, एक लोब ऐसे. eosinophils nucleus is the bilobe. Bilobed nucleus, eosinophils. Got it? फिर बात आती है मेरे पास में बेसोफिल्स. और जो बेसोफिल्स है, बेसोफिल्स का न्यूक्लियस, the nucleus of basophils is S-shaped. S-shaped nucleus is of basophils. S-shaped nucleus is the basophils. फिर बात आती है न्यूट्रोफिल्स. The nucleus of neutrophils having 1, 2, 3, 4, 5. 3 to 5 lobes are present in the neutrophils, nucleus of neutrophils. Monocytes. The nucleus of monocyte is the kidney-shaped nucleus, monocytes. Monocytes having the kidney-shaped nucleus. Now lymphocytes. The nucleus of lymphocytes is ट्राइलॉब्ड. ये ऐसे, ये ऐसे. These are trilobed nucleus present in the neutrophils. Acidophils, bilobed, S-shaped basophils, 5-lobed nucleus neutrophils, kidney-shaped monocytes and this one. चलो बच्चों अभी के लिए इतना ही.